So, good morning, my dear students, and welcome to the next online English video lecture, lecture number 142. तो ये जो lecture for class third students के लिए chapter 8 healing herbs. Okay, let's read and understand it. So, my dear students, so today we have reached lecture number 142. आज हम lecture number 142 में पहुंच गए. Okay. सो लेक्चर नंबर 142 में हमारा 8 चैप्टर में पहुंच गया एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हीलिंग हर्ब्स. तो हमारे 8 चैप्टर का नाम है हीलिंग हर्ब्स. सो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि इस लेसन में हम थोड़ा बहुत जिस रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो इस बार सर आपको रीड करके दे देंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में दिया था. तो आपको सर के साथ साथ रीडिंग करना है. सो रीडिंग प्रैक्टिस हम अभी करेंगे. ओके, सो एक्टिविटी नंबर 1. A science fair is going to be held. A science fair is going to be held in Gandhinagar for children of your age. Asmi would like to participate in it. She decided to take with her a self-prepared herb booklet. Dhruvi was trying to sharpen a pencil with a blade when she cut her finger and it started bleeding. Immediately, her mother brought a pinch of turmeric powder, applied it over the wound and pressed it hard. The bleeding was controlled. Dhruvi asked her mother why she applied turmeric powder to the wound. Her mother replied, "My mother used turmeric powder whenever we were hurt. Later on, I read in magazines that turmeric powder acts as a good antiseptic." What is an antiseptic, mother? Well, I think an antiseptic is something that heals a wound. So अभी हम next activity read करेंगे, and this activity is also the continuation of the first activity. Okay. Dhruvi meets a doctor. "Hello, Dr. Kalyani. How are you?" "What a pleasant surprise, Lakshmi. We are meeting after a long time. It's nice Dhruvi has also come with you. My mother says turmeric is an antiseptic. Is that so?" was Dhruvi's next question. "Yes, it is." Dr. Kalyani had no hesitation in replying. "Doctor, can you tell me more about the turmeric plant? Which are its other uses? Which science deals with the study of medical plants?" Dhruvi listed her queries. Nowadays, botany is dealing with the study of a few medicinal plants. There is also the Indian system of medicine. "You mean Ayurveda?" Dhruvi intervened. "Yes, Ayurveda means the science of life. Ayurveda means the science of life. Ayurveda deals with prevention and cure of diseases. Through Ayurveda, one can learn about the action of different herbs on various diseases. Such study of herbs is a part of our science." "How does turmeric act on cold?" "You know that cold is a viral infection. Turmeric has an antiviral effect. Indian women apply turmeric on their feet
Is there any reason behind this habit too? Yes, there is. Most of the women work in water for a long time. This can lead to infection of the feet. Turmeric prevents infections. Hence, women apply it on their feet. Now I understand why some advertisements talk of turmeric in creams. Thank you, doctor. You have given me so much information about common herbs and why they are used in our daily life. ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 8th चैप्टर में हीलिंग हर्ब्स यानी हमारा पैर हाथ में कहीं भी चोट लग गया तो सबसे ज़्यादा एक मेडिसिनल हर्ब होता है टर्मरिक. ओके, सो दैट मीन्स दैट येलो कलर पाउडर जो होता है जो नॉर्मली हम सब्जी बनाने के लिए सब यूज़ करता है, तो उसको एक ऐसा हीलिंग पावर होता है जो कोई भी छोटे छोटे जो वुंड से लग गया हो इधर उधर, और जो स्पेशली वाटर के रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है वो सब दूर हो जाता है, ठीक हो जाता है. ठीक है, तो इधर एक्चुअली ऐसा इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया है कि आयुर्वेदा एक काइंड ऑफ साइंस ऑफ मेडिसिन है. उसमें ज़्यादातर जो प्लांट्स जो मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़फुलनेस के बारे में बात किया गया है. ठीक है, सो आपको पता है कोई भी ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो हम घर पे भी रखता है और उसका पत्ता और हम पानी में डाल के उबाल के पानी भी पीता है. Yes, that is called tulsi. Tulsi is a kind of medicinal plant. Okay. So now we have to do the activity number 3, true or false. ठीक है, जैसे हमने अभी इधर आपको एक इन्फॉर्मेशन सर आपके लिए रीड करके दिया है, तो उस पैराग्राफ के अंदर से ये जो ट्रू और फॉल्स का सेंटेंस दिया है. ठीक है, अगर आपको सेंटेंस के हिसाब से जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है तो ट्रू लिखना है. अगर आपको लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में नहीं है देन दैट इज़ फॉल्स. सो टोटल 6 सेंटेंस दिया गया है, तो 6 सेंटेंस आपको रीड करके एक बार फिर से स्टोरी रीड कर लो, उसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स का कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, एंड नाउ वी हैव कम टू द एक्टिविटी नंबर 4, ए ब्रीथिंग एक्सरसाइज. ठीक, आप लोग में से कितने लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता है इन द मॉर्निंग? Yes, here is a kind of practice that we can do to maintain our health by doing breathing exercise. ठीक है, तो breathing exercise के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. So let's read it. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा चैप्टर का, तो वही हम रीड कर रहे हैं. ठीक है, चलो हम एक बार ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं. Close your right nostril with your right thumb. Okay, जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है वो राइट थंब से क्लोज करना है. आप इधर पिक्चर में दिख रहे हैं. ठीक है, तो इधर थोड़ा सा पिक्चर दिया गया है. ठीक है, एंड इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर. आपको राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, उसके बाद जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है तो उसमें से एकदम आराम से धीरे से एयर लेना है अंदर, और जब तक हमारा जो लंग्स एकदम अच्छे से फुल हो जाए मीन्स विथ एयर उतना करना है. नाउ थर्ड स्टेप क्या है? नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर. तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करना है सेकेंड एंड थर्ड फिंगर के साथ. ठीक है, रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू इट. ठीक, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में किया वैसे इनहेल करना है, सांस लेना है, मतलब एक्सेल करना है, यानी जो सांस लिया है वो दूसरी नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है. And repeat this exercise slowly in the beginning with practice increase your speech. Okay, तो इस तरीके से आपको दोनों साइड का आराम से ऐसे प्रैक्टिस करना होता है. That is what the breathing exercise is all about. Okay, so you can just do it now. And now we have the activity number 5. This is Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one does to remain healthy. Write a sentence about each member of Rajiv's family. Okay? तो राजीव की फैमिली के बारे में है, उसका फादर मदर एंड उसका सिस्टर एंड ग्रैंडपा ग्रैंडमा एंड राजीव. ठीक है, तो लोग हेल्दी डाइट हेल्दी फैमिली है. ठीक है, तो लोग क्या क्या एक्सरसाइज करता है तो अगर आप जस्ट देख रहे हो, तो
तो उसके बारे में एक एक सेंटेंस आप नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तो फादर क्या कर रहे हैं, राजीव्स फादर इज डूइंग एक्सरसाइज, राजीव्स मदर इज ऑल्सो डूइंग एक्सरसाइज, Raju's sister is doing exercise with playthings. Raju's grandpa is walking on the road. Raju's grandma is drinking water and Rajiv is running. So ये सब चीज़ आपको एक गुड हैबिट है, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 6 and 7 दे आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आपको मैंने जो रीडिंग प्रैक्टिस किया है वो आप एक बार फिर से रीड कर लो, ध्यान से सुन लेना फिर से। एंड जो एक्टिविटी नंबर 5 है जो आपको स्क्रीन में पूरा का पूरा दिख रहा है, तो पूरा का पूरा आप एक सेंटेंस बना लो। ये जो 6 फैमिली मेम्बर्स है राजीव के साथ, तो उसके बारे में एक एक सेंटेंस आप नोटबुक में लिखे रखो, ठीक है। एंड जो भी छोटा छोटा एक्टिविटी मैंने आपको बोला था इस लेसन में करने के लिए, फिर से रीडिंग प्रैक्टिस करो एंड नए नए वर्ड्स आप अंडरलाइन करके नोटबुक में लिख के स्पेलिंग भी लर्न कर लेना, ठीक है। तब सेफ रहो घर पे, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।